வீட்டுக்கு வருவேன். வீட்ல சாப்பிடுற டைம்க்கு வருவேன். அமைதியா சாப்பிடுவேன். घर में मैं आता हूँ और आते खाने खाने के समय में ऐसे चुपचाप से खाना खाता हूँ। மேல ஒரு ரூம் காலியா இருந்துச்சு. खाना खाने के बाद में एक रूम पे ऊपर जो है खाली रहता था मेरा। அங்க பைபிளும், ஸ்தோத்திர பலிகள் 1000ன்னு ஒரு புக் 2 புக் और தான் मेरे இருக்கும். घर के ऊपर ऊपर का रूम खाली रहता था, ऊपर जाता था, वहाँ पे बाइबल और 1000 जो है स्तोत्र बलि यानी कि एक किताब होती थी वहाँ पर, அத அங்க வச்சுட்டு இருப்பேன். वहाँ पे वो रूम में रखा रहता था। அவ்வளதான் சாப்பிடணும். நாங்க போனோம். திருப்பியும் ஜெபம் பண்ணோம். बस ऐसे ही खाता था, ऊपर जाता था, बस जाके वहाँ प्रार्थना करता था। அப்புறம் வேற எங்கெங்கெல்லாம் பிரேயர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். और उसके बाद में जहाँ-जहाँ पे प्रार्थना होती थी, वहाँ-वहाँ बस भागता रहता था। எங்க பிரேயர்ன்னு யாரு கூப்பிட்டாலும் போயிட வேண்டியது தான். कोई भी अगर हमें बोलेगा कि यहाँ प्रार्थना है, वहाँ प्रार्थना है, बस उसके लिए बस भागता रहता था। ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ஆண்டவர் வந்து பிளஷருக்கு அகைன்ஸ்ட்ல அவர் தான் ஜென்யூன் பிளஷர தரவர். देखो यहाँ पे परमेश्वर जो है वो सुख भोग के विरोध में नहीं है, लेकिन जो सत्य जो हकीकत वाला जो प्लेजर है परमेश्वर खुद देते हैं। நம்ம ஆண்டவர என்ஜாய் பண்ணிட்டோம்னா, अगर हम परमेश्वर का आनंद उठा लिए तो எந்த ட்ரக்ஸ்லயும் இல்லாத மயக்கம், போதை அவரோட அன்புல இருக்கு. कोई भी ड्रग्स में जो नशा नहीं है, लेकिन वो जो नशा परमेश्वर के प्रेम में है, நான் சொல் वैसा नशा நான் उनके प्रेम में சொல்லட்டுமா? है। அவரே ஒரு பெரிய ட்ரக் தான். देखो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर खुद एक जबरदस्त ड्रग है। ஒரு சில பக்தியான ஆட்கள் இருந்தாங்கன்னா என் மேல கோச்சிக்குவாங்க. देखो यहाँ पे कुछ अगर भक्तिवान लोग अगर है तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। கடைசியில போயும் போயும் கடவுள ஒரு ட்ரக்கோட சொல்ட்டானே. आखिरकार आखिरकार ये परमेश्वर को ही ड्रग्स करके बोल दिया ना। எந்த ட்ரக்ஸ்லயும் கிடைக்காத இன்பம், போதை வந்து ஆண்டவரோட அன்புல இருக்கு. कोई भी ड्रग्स में वो सुख भोग नहीं है, वैसा वैसा नशा परमेश्वर के प्रेम में है। சொல்றாரு, "In his presence there is fullness of joy. At his right hand there are pleasures उन forevermore." उनके निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ यानी उनके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। மனுஷன் என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு இருக்கான்? आपको पता है मनुष्य क्या कर रहा है? 2 காரியம் நம்மள நம்மள தெரியாமலே நம்ம 2 காரியம் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். देखो जाने अनजाने में हम 2 चीजें कर रहे हैं। We always try to avoid pain. देखो हम हमेशा जो दर्द है ना, दर्द को अवॉइड करते हैं। நம்மளுக்கு வலி உண்டாக்குற காரியத்தை எதையும் செய்ய மாட்டோம். देखो जो चीज़ हमें दुःख पहुँचाता है, वो चीज़ हम कभी नहीं करते। நம்மளுக்கு தெரியும் நெருப்புல கை வச்சா சுடும்னு தெரியும். हमें मालूम है अगर हम आग में हाथ लगाते हैं तो हाथ जल जाएगा करके சுட்டா பெயினா இருக்கும். और वो जल जाएगा, उसके बाद में दर्द होगा। அந்த பெயின் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம நெருப்ப டச் பண்ண तो மாட்டோம். इसीलिए वो दर्द ना हो इस वजह से उस आग को हम छूते नहीं हैं। யாரெல்லாம் நம்மள ஹர்ட் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட போமாட்டோம். जो लोग हमें चोट पहुँचाते हैं, हम उन लोगों के पास नहीं जाते हैं। நம்ம வந்து பெயின் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். तो हम उस दर्द को बस नकारते रहते हैं। அன்கான்ஷியஸா நம்ம பெயின் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். अनकॉन्शियसली हम उस दर्द को जो है हम अवॉइड करते रहते हैं। அதே போல நம்மளுக்கு தெரியாமலே ஹாப்பினஸ தேடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். उसी तरह जाने अनजाने में हम उस खुशी को ढूंढते जा रहे हैं। ஹாப்பினஸ தேடிக்கிட்டே हम இருக்கோம். उस खुशी को ढूंढते जा रहे हैं। ஆண்டவர் சொல்றார், "நீ தேடுற சந்தோஷம் என்னையில இருக்கு வான்றார்." यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे जो खुशी को जो भोग को तू ढूंढ रहा है वो मेरे अंदर है, तू मेरे पास आ। ஹalleluya. हालेलुया। அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு. उनके पास वो जबरदस्त सुख है। In his presence there is fullness of joy. उनके निकट जो है भरपूरी का आनंद है At his right hand there are pleasures और forevermore. उनके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। என்னுடைய விருப்பம் என்னன்னா, अब मेरी इच्छा क्या है நீங்க எல்லாம் பெரிய pleasure seekers ஆ மாறிடணும். और आप लोग जो है एक जबरदस्त सुख भोग के पीछे करने वाले में से हो जाना चाहिए। Hedonist இல்லனா hedonism அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. हिडनिज्म करके एक ग्रुप है। அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா என்னன்னா pleasure seekerன்ற அர்த்தம். उसका मतलब ये है जो सुख भोग जो ढूंढते हैं ना उन लोगों का नाम है। நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஹீடனிஸ்ட் தான். तो हम सभी लोग एक मसीह हिडनिस्ट ही है। நீங்க pleasure இன்பத்தை தேடணும். तो आप जो है वो सुख भोग को ढूंढना है உண்மையான இன்பத்தை தேடணும். और जो हकीकत जो है उस सुख को ढूंढना है। மத்த இன்பம்லாம் ரொம்ப டெம்பரரி. देखो बाकी का जो सुख जो है ना वो सिर्फ थोड़े क्षणों के लिए है। உண்மையான பேரின்பம் எங்க இருக்குதுன்னா ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இருக்கு. जो सत्य भरपूरी है, जो सुख है वो परमेश्वर के पास केवल है। அந்த உண்மையான இன்பத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டோம்னா अगर वो सुख को अगर हम आनंद
या उसका अनुभव कर लेंगे பாவத்தை ஜெயிக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி. तो पाप को जीतना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ஏன்னா பாவம் இனிமேல்ட்டு உங்களுக்கு அந்த காரியம்லாம் டேஸ்டாவே தெரியாது. क्योंकि जो पाप है ना वो सारी जो बातें आपके लिए इतना स्वादी यानी टेस्ट नहीं लगेगा। தெரு மேல ஒரு பொருளை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். हम्म, தெருல रास्ते में एक चीज को खाते जा रहा है அவனை கூட்டு போய் ஒரு பெஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ல அதே பொருள் வந்து நல்ல குவாலிட்டியா வாங்கி தரீங்க. तो आप जाते हो एक अच्छे सर्वोत्तम रेस्टोरेंट में लेकर जाते हो और वही चीज को आप एक 5 स्टार होटल में जाके खिलाते हो। அங்க போய் அவன் சாப்பிட்ட பிறகு वो वहां जाके खाने के बाद இதுக்கு முன்னாடி அவன் சாப்பிட்டதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. फिर इससे पहले जो खाया था रास्ते में वो सब उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। இனிமேல்ட்டு எல்லாருக்கும் வந்து அதுதான் வேணும். फिर अभी से लेकर वही चीज हर एक लोगों की जरूरत है, वही चाहिए। உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? देखो सभी को समझने के लिए हम एक आपको उदाहरण बताऊं क्या? பாம்பேல எத்தனையோ பிரியாணி இருக்கு. देखो मुंबई में कितने सारे बिरयानी हैं। இன்னொன்னு சொல்றாங்க பாருங்களேன், தம் பிரியாணி அப்படின்னா என்னன்னே தெரியல. என் பிரியாணி கூட தம் பிரியாணி தான். दम बिरयानी करके ऐसा अलग अलग नाम है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा जो बिरयानी वो भी तो दम बिरयानी है। எல்லாம் ஸ்டீம் பண்றது தான் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தம் போடுறதுன்ற அர்த்தம். तो जो भी हम भाप में रख के पकाते हैं मेरे हिसाब से सब दम बिरयानी ही है। நான் கூட தான் என் ரைஸ் வந்து லாஸ்டா ஸ்டீம்ல குக் பண்றேன். मैं भी वैसा ही करता हूँ, जब चावल होता है उसके बाद में दम के अंदर दम में रख के पकाता हूँ। ஆனா தெரியாது என்னன்னா பிரியாணியோ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं अलग अलग किस्म की बिरयानी எங்க है। பிரியாணி ஒருத்தன் சூடா 3 டைம் சாப்பிட்டானா அதுக்கப்புறம் வேற எந்த பிரியாணி அவனுக்கு பிடிக்காது. मेरा நான் जो எழுதி बिरयानी தரேன் நான். मैं जो बिरयानी बनाता हूँ वो गर्मा गर्म एक इंसान 3 बार अगर खा लेता है तो मेरे बिरयानी के अलावा वो दूसरा बिरयानी खाएगा ही नहीं। ये मैं लिख के देता हूँ, उसके लिए कोई स्वादिष्ट नहीं लगेगा दूसरा बिरयानी। 3 டைம் சூடா என் பிரியாணி சாப்பிட்டானா 3 दफा गर्मा गर्म मेरा जो बिरयानी में जो बनाता हूँ अगर खाएगा तो பாம்பேல நீங்க எந்த பிரியாணி கூட எடுத்துன்னு வந்து கொடுங்க, அவனுக்கு என் பிரியாணி தான் வேணும். मुंबई में आप कुछ भी बिरयानी लाके दे दो तो उसको वो सिर्फ मेरा बिरयानी ही वो खाएगा। முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணணும். पहले टेस्ट करना है। ஒரு 2 டைம் 3 டைம் டேஸ்ட் பண்ணான்னு வச்சீங்க. 1 बार 2 बार 3 बार अगर उसको आप चखोगे तो, ஏன்னா முதல்ல கொஞ்சம் டேஸ்ட் சூட் ஆகணும் பாத்துங்க. क्योंकि पहली दफा जब खाते हैं तो वो टेस्ट जो है हमें वो सूट होना चाहिए। ஏன்னா இவங்க ரொம்ப நாளா ஒண்ணு வந்து இதான் பிரியாணின்னு பாத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना ये लोग ये अलग किस्म के बिरयानी को ही देखते आ रहे हैं। இப்ப நம்ம பிரியாணி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். तो जब हम बिरयानी बना के देते हैं तो वो बिरयानी थोड़ा सा अलग रहता है उनके ஸ்டார்டிங்ல लिए। அந்த அளவுக்கு இதுவா தெரியாது. और जब शुरुआत में जब खाते हैं या देखते हैं तो उनको इतना लगेगा नहीं நான் इतना சேலஞ்ச் अच्छा। பண்ணி சொல்றேன், சூடா 3 டைம் என் பிரியாணி ஒருத்தன் சாப்பிட்டானா அவன் லைஃப் டைம் என் கஸ்டமர் தான். लेकिन मैं चैलेंज करके बोलता हूँ एक बंदा 3 दफा मेरा गर्मा गर्म मेरे हाथ का बिरयानी अगर खा लेगा तो मैं चैलेंज करता हूँ तो दूसरा कोई बिरयानी वो नहीं खाएगा। ஒருத்தர் 3 வருஷம் டெய்லியும் பிரியாணி சாப்பிட்டாரு. एक जन 3 साल रोज मेरा बिरयानी खाया। நோ எக்ஸாஜரேஷன். நிதின் பவுலே கேட்டு பாருங்க. नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के मैं नहीं कह रहा हूँ। नितिन पावले से आप पूछ कर देखे, டெய்லி பிரியாணி. रोज बिरयानी। நானே நினைப்பேன் வேற ஏதாவது அவருக்கு மீன் குழம்பு பண்ணி கொடுக்கலாம். मैं खुद सोचता था अरे ठीक है आज थोड़ा शायद मच्छी उच्छी का कुछ ग्रेवी बना के देंगे। ஏன்னா அவர் பிரியாணி சாப்பிட்டு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஆயிட்டாரு. तो ऐसा हुआ कि वो बिरयानी खा के जो है एक परिवार के एक सदस्य जैसे हो गए थे சோ हमारे। பாவம் அவருக்கு நான் வேற ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கலாம். तो हमने सोचा कि ठीक है चलो पाप बेचारे आज कुछ अलग सा बना के देते हैं। ஆனா அவர் சொல்லுவார், வேண்டாம் வேண்டாம் பிரதர், உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லைன்னா பிரியாணி இருந்தா எனக்கு பிரியாணியே கொடுத்துருங்கன்னு. लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं ब्रदर अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप जो बिरयानी आप बनाते हो वही मुझे आप दे दो। அது போல ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல இருக்கிற இன்பத்தை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், उसी तरह जो परमेश्वर के अंदर जो सुख भोग है उसको अगर हम चख लिए तो நீங்க லைஃப் டைம் அவருக்கு கஸ்டமர் ஆயிடுவீங்க. तो आप जो है जिंदगी भर उनके कस्टमर हो जाओगे। வேற எந்த பிளஷர் நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாலும் வேண்டாம் வேண்டாம், அவரோட பிரசன்ஸ்ல இருக்கிற பிளஷர் தான் எனக்கு வேணும்னு கேட்பீங்க. मैं अगर दूसरा को सुख आपके पास लेकर भी आऊं ना तो आप ये कहोगे नहीं नहीं मुझे उनके अंदर जो सुख भोग है ना मुझे वही चाहिए करके आप कहोगे। பாவத்தோட போராடணும்ன்றாங்க பாருங்க, அதெல்லாம் ஒரு போராட்டமும் இருக்காது. देखो जो पाप से लड़ रहे करके ऐसा कहते हैं ना तो ये जो पाप का जो लड़ाई वो सब कुछ भी नहीं रहेगा।
என் பிரியாணிய மத்த பிரியாணி வச்சா என் பிரியாணி சாப்பிட்டவன் என் பிரியாணி தான் வேணும்னு கேட்பான். तो मेरा बिरयानी और दूसरे का कोई बिरयानी अगर आपके सामने रखते हैं तो आप क्या कहोगे, मुझे मेरा मतलब अनिल पास्टर का बिरयानी ही चाहिए करके वो बोलेगी। இதுல பெரிய டெம்ப்டேஷன்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. டைரக்ட்டா ஈஸியா சூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே इसमें இருப்போம். कोई टेम्पटेशन सब नहीं है, डायरेक्टली आप उसका जो है चुनाव करके खाते चले जाएंगे। ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸ்ல இருக்கிற பிளஷரை நீங்க டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா देखो परमेश्वर के अंदर जो प्लेजर है, जो सुख भोग है, अगर आप उसे चख जाओगे तो வேற எந்த பிளஷர் உங்களுக்கு டேஸ்டாவே தெரியாது. दूसरा कोई भी सुख भोग आपके लिए स्वादिष्ट नहीं लगेगा। நான் அல்டிமேட் பிளஷரே பார்த்துட்டேன். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க मैं நினைக்கிறீங்க. आखिरकार जो प्लेजर है, सुख भोग है, वो ही मैं देख लिया तो ये सब मेरे लिए कुछ नहीं करके आप सोचोगे। சீரியஸா சொல்றேன். मैं सच कह रहा In हूँ। his presence there is fullness of joy. उनके निकट भरपूरी का आनंद है At his right hand there are pleasures और forevermore. उनके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा हमेशा है। Psalm 34 ல ஆண்டவர் சொல்றாரு. देखो भजन संहिता 34 में परमेश्वर कह रहे हैं, Oh, taste and see that the Lord is good. ओ चक्कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாரு. परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे चक्कर देखो। Oh, taste and see that the Lord is good. ओ चक्कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். मुझे चक्कर देखो कि मैं कितना भला हूँ करके। Hallelujah. हालेलुया। வேதவசனம் என்ன சொல்லுது? यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். परमेश्वर भला है, बस उन्हें चक्कर देखो करके। நீங்க அவரை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. देखो अब उन्हें चक्कर देखो। நான் உங்க எல்லாரையும் அவரை டேஸ்ட் பண்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இன்வைட் பண்றேன். देखो मैं जो हूँ आपको उनको चखने के लिए न्योता देता हूँ। நீங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருக்கணும். आप जो है परमेश्वर के बच्चे होना चाहिए ஆண்டவருக்குள்ள பிளஷரை தேடுற ஆளா இருக்கணும். और आप जो है ऐसे बच्चे होना चाहिए कि परमेश्वर में वो सुख भोग ढूंढने वाले में ஆனா से। பக்திமான் மாதிரி நடிக்கிற மாதிரி ஆளா இருக்க கூடாது. लेकिन भक्तिवान के जैसा नाटक करने वाले इंसान नहीं होना चाहिए आपको। சுடுமூஞ்சி மாதிரி ஒரு மூஞ்சி வச்சிட்டு खड़ूस की तरह एक चेहरा रखकर praise the Lord brother, Praise praise the Lord. Lord sister. प्रेज लॉर्ड भाई, प्रेज लॉर्ड बहन। பாஸ்டருங்களை பார்த்தாலே குழந்தைங்க எல்லாம் ஓடும் பாத்துங்க. पास्टर लोगों को देखते ही जो बच्चे अच्छे होते हैं वो सब देख के भाग जाते हैं। நான் சின்ன वयசுல பாப்பேன். ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்தே கிறிஸ்டியன் இல்ல. देखो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही मसीह हूँ ना। பாஸ்டர் கிட்ட பசங்க போவே போகாது. देखो पास्टर जो लोग होते हैं उनके पास बच्चे जाते ही नहीं है। பாஸ்டரை பார்த்தாலே பசங்க ஐயோ பாஸ்டர் அங்கிள் அப்படின்னு குடுகுடுன்னு ஓடும். जैसे पास्टर आते हैं तो पास्टर अंकल, अरे पास्टर अंकल आ गए तो फटाफट करके भाग जाते हैं वो लोग। இந்தியாலே நான் ஒரே பாஸ்டர். என்கிட்ட தான் நிறைய பசங்க வராங்க. देखो इंडिया में ऐसा मैं एक ही पास्टर हूँ जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं என்கிட்ட இப்ப பார்த்தா நிறைய பசங்க விளையாடிட்டே और இருப்பாங்க. मेरे पास हमेशा बहुत सारे बच्चे जो है खेलते रहते हैं। ஒரு பாஸ்டர் கூட சொல்லிட்டாரு, और एक पास्टर ने भी बोल दिया, அவனுக்கு என்ன தெரியும் சின்ன பசங்களோட எப்ப விளையாடினே இருப்பான். उसको क्या पता है हमेशा छोटे छोटे बच्चों लोग के साथ में खेलता रहता है। பாஸ்டர்னாலே இன்னும் புள்ள பிடிக்கிறவன் வரா மாதிரி பயந்து பசங்க ஓடிடுவாங்க பாத்துங்க. पास्टर करके बोलते हैं, जैसा ना बच्चा पकड़ने वाले जो होते हैं उसकी तरह जो पास्टर लोग होते हैं। பசங்க பயந்து ஓடுவாங்க. बच्चे பாஸ்டர் लोग बच्चे लोग ना डर के भागते हैं, जैसा कोई बच्चा पकड़ने वाला आ गया। ஏன்னா இவர் பசங்களை பார்த்து விளையாட மாட்டாரு. क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो पास्टर होते हैं, बच्चों के साथ में कभी खेलते ही नहीं है। குழந்தைங்க கிட்ட கூட பார்த்து பைபிள் வாசிட்டியா, ஜெபம் பண்ணியா, बच्चों को भी देख कर ये कहेंगे, क्या प्रार्थना किया, क्या बाइबल पढ़ा क्या। எனக்கு ஒரு நாள் ஞாபகம் இருக்கு. देखो एक दिन मुझे याद है, எங்க வீட்ல அப்ப நான் வந்து ரட்சிக்கப்படல. और मेरे घर में जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன். और एक परिवार का एक फंक्शन चल रहा था சோ பிரேயர் இருந்துச்சு. और वहां पे एक प्रार्थना था। அப்படியே ஒரு 3-4 பாஸ்டர் வந்திருந்தாங்க. तो ऐसे 3-4 पास्टर लोग आए थे நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க. और बहुत सारे जो हमारे रिश्तेदार भी आए थे। சரி நான் வெளியிலேயே இருந்தேன், உள்ள போல. तो ऐसे मैं बाहर ही खड़ा था और मैं अंदर नहीं गया। ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர்லாம் முடிட்டோம். मैंने ये सोचा कि चलो पहले प्रार्थना सब खत्म होने दो, பிரேயர்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சாப்பிடுவோம், அப்புறம் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுவோம், ஜாலியா இருப்போம். फिर पहले प्रार्थना खत्म होने दो, प्रार्थना खत्म होने के बाद सब खाएंगे, फिर उसके बाद में सबके साथ थोड़ा सा हम मस्ती मजाक करेंगे। சொந்தக்கார பசங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. और हमारे जो पहचान के जो है रिश्तेदार, उनके सारे बच्चे सब आए थे சோ எப்படா பிரேயர் முடியும்னு வெயிட் பண்ணிருந்தேன். और मैं बस इंतजार में था कि कब ये प्रार्थना खत्म होगा। வெளியில பைக் பார்க் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களா, அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். वहां पे बाइक घर के बाहर जो है बाइक को पार्क करके रखे थे, वहां पे मैं खड़ा हुआ था। ஒரு பாஸ்டர் வந்தாரு. एक पास्टर आए அவர் ரொம்ப சீரியஸா வந்துட்டு, டேய் தம்பி என்ன இங்க பைக்ல உட்கார்ந்து நிக்கிறேன். और बड़े गंभीर तौर से मेरे पास आए और वो कहने लगे, ए बेटा क्या तू बाइक के ऊपर बैठा है, பிரேயருக்குள்ள வான்னு. अंदर आजा प्रार्थना के लिए। நான் சொன்னேன் வேலையை பார்த்துன்னு போயா அப்படின்ட்டு.
मैंने कहा जा अपना काम देख के तू जा अंदर। அவரு குழம்பிட்டாரு. என்னடா இந்த பையன் நம்மள விட மோசமானவனா இருப்பான் போல இருக்கு. वो बड़ा ही कंफ्यूज्ड हो गए रहेंगे, क्या ये लड़का हम लोग से भी बहुत जबरदस्त बेकार लड़का होगा ना। ரொம்ப சீரியஸா வந்துட்டு, "தம்பி வந்து பிரேயர்ல உட்காரு" அப்படின்னாரு. बड़े गंभीरता से वो आके कह रहे हैं, बेटा अंदर आके आके प्रार्थना में बैठ करके। "உள்ளலாம் வரமாட்டேன் வேலைய பார்த்துன்னு போயா" அப்படின்ட்டேன். अंदर सब नहीं आऊंगा, जा अपना काम देख के जा अंदर, ऐसे बोल दिया मैंने। அப்புறம் எங்க அப்பாலாம் வந்து திட்டி மன்னிப்பு கேளுன்னு சொல்லி, फिर इसके बाद में मेरे पिता आए और मुझे बहुत डांटे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ जाके माफी मांगो करके। பாஸ்டருங்க வந்தாங்கனாலே நாங்க ஓடிடுவோம் பாத்துங்க. देखो पास्टर्स लोग जैसे आते हैं और हम उनको देख के ही भाग जाते हैं। வெளியில இருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருப்போம். बाहर से हम घर आते रहते हैं, आते பாஸ்டருங்க समय। யாராவது வீட்டுக்கு ஊழியக்காரங்க याराவது வந்திருப்பாங்க. तो घर में जैसे हम आते हैं तो घर में कोई तो एक पास्टर आके बैठे होंगे। பார்த்தோம்னாலே டக்குன்னு உடனே அப்படியே பேக் அடிச்சிடுவோம் और வீட்டுக்கு जैसा போய். हम देखते हैं कि पास्टर अंदर बैठे हैं, तुरंत उल्टा पाँव हम लोग जो है घर से बाहर वापस चले जाते हैं। ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பைபிள் வாசித்தியா, ஜெபம் பண்ணியா? क्योंकि जब भी देखो बाइबल पढ़ा क्या, प्रार्थना किया क्या, यही இ पूछते हैं। இதுல வேற நேர் முழங்கால்ல ஜெபம் பண்ணு. उसमें भी ऐसे सीधे-सीधे जो है घुटने टेक के जो है प्रार्थना करो करके कहते हैं। நேர் முழங்கால்ல ஜெபம் பண்ண எனக்கு ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல. ஏன்னா ஸ்கூல்ல அடிக்கடி நான் முட்டி நீல் டவுன் தான் பண்ணின்னு இருப்பேன். देखो सीधा घुटने टेक के प्रार्थना करने में भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि स्कूल में जो है हमेशा मैं ऐसा ही रहता हूँ। सजा मिलती है। படிக்க சொல்றத தவிர, நீல் டவுன் பண்ண சொன்னா கூட ஸ்கூல்ல நான் சந்தோஷமா நீல் டவுன் பண்ணுவேன். पढ़ने के अलावा अगर टीचर कहेंगे कि जाओ बाहर जाके नील डाउन करो, तो भी मैं बड़े ही खुशी से जाके नील डाउन करूंगा। நாங்க ஏதோ நீல் டவுன் பண்ணீங்கனால வெட்கப்பட்டோ, வருத்தப்பட்டோ அப்படிலாம் இல்ல. சந்தோஷமா நீல் டவுன் பண்ணோம். अगर हमें कहते हैं कि जाओ जाके नील डाउन करो, तो हम वहाँ पे शर्मा के, दुख से, इंसल्ट के जैसा हम नहीं सोचते, बल्कि हम बड़े ही खुशी से जाते हैं और बाहर जाके जो है नील डाउन करते हैं। ஏன் ஏன் இந்த மாரி ரொம்ப ஊழியக்காரங்க ரொம்ப ரிலிஜியஸா இருக்கிறதுனால, கடவுள்கிட்ட வர்றது, கடவுளுக்குள்ள ஒரு என்ஜாய்மென்ட் இருக்குன்னு ஜனங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ये जो सेवकाई जो लोग हैं, सेवक जो लोग हैं, ये लोग बड़े ही गंभीर रहते हैं। इस वजह से जो है கடவுள்கிட்ட ஜனங்க வர்றதுக்கே பிடிக்க भयப்படுறாங்க। மாட்டாங்க, பயப்படுறாங்க. तो इसीलिए जो है लोग जो है परमेश्वर के पास आने के लिए ही डरते हैं। நீங்க ரொம்ப பக்திமான் மாரி காமிக்கணும்னு அவசியமே இல்ல. देखो आप बड़े ही भक्तिवान है करके आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ஆனா உண்மையிலே கடவுள தேடுற ஒரு ஆளா இருக்கணும். लेकिन आप हकीकत में जो है दिल से परमेश्वर को ढूंढने वाले में से होना चाहिए கடவுள வாஞ்சிக்கிற ஒரு ஆளா और இருக்கணும். परमेश्वर की चाहत करने वाले इंसान होना चाहिए நீங்க என்ன आपको। வேணா பண்ணுங்க. ஆனா அல்டிமேட்டா உங்களுக்குள்ள கடவுள தேடணும்ன்ற ஒரு வாஞ்சை இருந்துகிட்டே आप இருக்கணும். कुछ भी कर लो, लेकिन आखिरकार आप परमेश्वर को खोजने वाले इंसान आपको बनना चाहिए। செயின்ட் அகஸ்டின் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. संत अगस्तीन जो है उन्होंने ऐसा कहा, லவ் காட் அண்ட் டூ வாட்எவர். परमेश्वर को प्रेम करो और आप कुछ भी करो। நீ முதல்ல ஆண்டவரை நேசி. அதுக்கப்புறம் என்ன வேணா பண்ணு. आप सबसे पहले परमेश्वर को चाहा, उसके बाद में तुम कुछ भी करो। வரப்போற நாட்கள சும்மா சர்ச்சுக்கு போய் ஒரு பிரேயர் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வர ஆள் கிடையாது. तो आने वाले दिनों में जो है ऐसी कलीसिया गए, ऐसी प्रार्थना में शामिल हो गए और वापस घर चले, वैसे नहीं होना चाहिए आपको। உண்மையிலேயே நீங்க ஆண்டவரை தேடுற ஒரு ஆளா இருக்கணும். लेकिन दिल से परमेश्वर को ढूंढने वाले इंसान आपको बनना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। உண்மையிலேயே நீங்க ஆண்டவரை வாஞ்சிக்கிறீங்களான்னு கேட்டு பாருங்க. और अपने आप से आप पूछ कर देखें कि आप सच में परमेश्वर की चाहत करते நான் हो क्या? கிறிஸ்டியன் இன்னைக்கு எப்படியா பிரேயர் அட்டெண்ட் பண்ணணும். मैं मसीह हूँ, कैसे तो करके आज मेरे को प्रार्थना में शामिल होनी है। ஒரு சில பசங்க அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க அம்மா திட்டுவாங்க, அவங்க அப்பா திட்டுவாங்கன்னு அட்டெண்ட் कुछ பண்ணுவாங்க. बच्चे जो है इसमें शामिल होंगे, पता है क्यों? क्योंकि उनके माँ-बाप या कोई भी उनको जो है उनको डांटेंगे, इसलिए उन्हें शामिल होना है इसमें। உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஆண்டவர் மேல விருப்பம் இருக்கா? सच में परमेश्वर के ऊपर आपको चाहत है क्या? நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லட்டுமா? देखो एक बात मैं आपको बताऊं क्या? ஆண்டவருக்கு நீங்க தான் விருப்பம். परमेश्वर को सिर्फ आप ही चाहत है। அவரு உங்க மேல பயங்கர விருப்பமா இருக்காரு. आपके ऊपर जो है परमेश्वर को बहुत चाहत है। ஜெஃபனியா 3:17 வாசித்து பாருங்க. जिफिने की किताब जो है 3:17 पढ़कर देखिए। ஆ, ஆண்டவர் வந்து உங்கள உங்கள பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாராம். परमेश्वर आपको देखकर
बड़े ही आनंद होते हैं உங்கள பார்த்து அவரு ஆனந்தமா பாட்டு பாடுறாராம். और आपको देखकर बड़े ही खुशी से वो गीत गाते हैं। ஆண்டவர் வந்து உங்கள டாலரேட் பண்ணல. देखो परमेश्वर आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं। ஆண்டவர் வந்து உங்கள செலிப்ரேட் பண்றாரு. परमेश्वर आपका जश्न मनाते हैं। God is delighting in you. देखो परमेश्वर आप में मगन हो रहे हैं நீங்க அவரோட டிசையரா இருக்கு. और आप ही उनके इच्छा हो। ஆனா உங்களுக்கு அவரு டிசையரா இருக்காரா? लेकिन क्या आपको भी उनके जैसा इच्छा है क्या उनके लिए? ஆண்டவருக்கு நீங்க தான் விருப்பம். देखो परमेश्वर को केवल आप चाहत हो। நான் சொல்லியிருக்கேன் God's favorite topic is you. देखो मैंने आपसे पहले बताया हूँ परमेश्वर का प्रसिद्ध विषय आप ही हो உங்கள பத்தி பேசினா ஆண்டவர் எக்ஸைட்டட் ஆயிடுறாரு. और आपके बारे में अगर कोई बोलता है तो परमेश्वर बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं। உங்களால நம்ப முடியுதா? क्या आप इस बात पे भरोसा कर पाते हो? You are a God's dream and manifestation. और ये परमेश्वर के आप जो है परमेश्वर के स्वप्न है जो हकीकत हो चुका நீங்க है। இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? आप आज इस संसार में होने का पता है क्या कारण है? Because God wants you, God desires you. क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि आप रहे और परमेश्वर आपको बहुत चाहते हैं, இந்த इच्छा மாதிரி ஒரு करते हैं। பையன் வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும்னு நினைச்சதுனால தான் உங்களை கொண்டு வந்தாரு. इस किस्म का एक लड़का चाहिए, इस किस्म की मुझे एक लड़की चाहिए, इसीलिए आप इस संसार में हो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। உங்கள மாதிரி ஒரு பையன், உங்கள மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும்னு நினைச்சதுனால தான் நீங்க இந்த உலகத்துல இருக்கீங்க. परमेश्वर ने चाहा कि आपके जैसा एक लड़की हो, आपके जैसा एक लड़का हो, इसलिए आप इस संसार में हो। ஆண்டவருக்கு நீங்க தான் ட்ரீம். देखो परमेश्वर को आप ही स्वप्न हो, ஆண்டவருக்கு நீங்க தான் டிசையர். परमेश्वर को आप ही इच्छा हो। ஆனா உங்களுக்கு ஆண்டவர் டிசையரா? क्या आपको भी परमेश्वर इच्छा है? आपके लिए भी परमेश्वर ही அவர் इच्छा மேல है क्या? நம்மளுக்கு உண்மையான டிசையரே இருக்காது. देखो उनके ऊपर हमें जो है सत्य इच्छा ही नहीं रहता है। ஆனா பயங்கரமா அவர் மேல டிசையர் மாதிரி பாட்டு பாடும். दिल से कोई इच्छा तो नहीं होती है लेकिन ऐसे ही ढोंगी जैसा जो है उनके लिए बहुत जबरदस्त गीत सब हम गाते हैं பேச்செல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல நம்மளுக்கு பயங்கர வாஞ்ச மாதிரி இருக்கும். और इतने सारे बोल ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत उनके ऊपर हमारी इच्छा है जैसे। ஆனா உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஆண்டவர் மேல டிசையரா? लेकिन दिल से सच में परमेश्वर के ऊपर आपकी इच्छा है क्या? நம்மள ஏமாத்திக்கிறத நம்ம விடணும். देखो हम अपने आप को जो धोखा दे रहे हैं वो हमें छोड़ना है। உங்களையும் ஏமாத்தின்னு மத்தவங்களையும் ஏமாத்தின்னு கடவுளை ஏமாத்துறதா நினைச்சுக்கிட்டு आप अपने आप को भी धोखा देते हो, दूसरे को भी धोखा देते हो और आप जो है परमेश्वर को भी धोखा देने के जैसे ही है। உண்மையிலேயே ஆண்டவர் உங்களுக்கு விருப்பமா? क्या दिल से परमेश्वर आपकी इच्छा है क्या? உண்மையிலேயே அவர் மேல உங்களுக்கு ஹங்கர் இருக்கா? सच में परमेश्वर के ऊपर आपको भूख है क्या? சாப்பாட பத்தி எவ்வளவு நினைக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு கடவுளை பத்தி அதான் நினைக்கிறோமா? खाने के बारे में कितना सोचते हैं हम? क्या वो हद तक भी हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं क्या? அடிக்கடி உங்களுக்கு பசி எடுத்துட்டே இருக்குதே, கடவுள் மேல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹங்கர் இருக்கா? बार बार आपको भूख लगता रहता है ना, वैसा परमेश्वर के ऊपर आपको वो भूख है क्या? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए। இன்னைக்கு வந்து எல்லா விதமான ஹிப்போக்ரிசில இருந்து வெளியில வரணும். आज जो भी ढोंगीपन है उसमें से आपको बाहर आना है। ஆண்டவரே என்னோட இருதயத்தை குணமாக்குங்கன்னு கேட்கணும். परमेश्वर मेरे हृदय को चंगा करो करके आपको मांगना है परमेश्वर உண்மையா से। ஆண்டவரே உங்களோட விருப்பமா மாறணும். और सच में जो है परमेश्वरी आपकी इच्छा में बदलना चाहिए। நான் சொல்றேன் பாருங்க. देखो मैं बताता हूँ, ஆண்டவரே உங்களோட விருப்பமா மாறணும். परमेश्वर ही केवल आपकी इच्छा में बदलना चाहिए நீங்க அவருக்குள்ள இன்பத்தை தேடணும். और परमेश्वर में ही वो जो है सुख भोग को ढूंढना है அவருக்குள்ள இருக்கிற இன்பத்தை நீங்க और அனுபவிக்கணும். परमेश्वर के अंदर जो सुख भोग है उसको आपको अनुभव करना है। ஹalleluya. हालेलुया। சோ இந்த வாரம் இதோட முடிச்சுக்குவோம். तो ये हफ्ता यहाँ से हम समाप्त करेंगे।